Hello students, welcome to EduEct, Education Anytime. In this video we will solve exercise 9.3. Question 1 में दिया हुआ है find the 20th and nth term of GP 5/2, 5/4, 5/8. तो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट टर्म GP का दिया हुआ है 5/2 और रेशियो R इज इक्वल टू 5/4 अपॉन 5/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. इट इज 1/2. सो a is 5/2 and r is 1/2. Now nth term, we know that nth term of GP is a into r to the power n minus 1. So an will be equal to, a की वैल्यू is 5/2 and r की वैल्यू is 1/2, 1/2 the power n minus 1. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ए एन इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 द पावर n माइनस 1. सो इट इज 5 इंटू 1 की पावर n माइनस 1 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1. सो वी कैन से ए एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर n. Now we have to find out A20. So an में n is equal to 20 रख देते हैं. So A20 will be equal to 5 upon 2 the power 20. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द 12 टर्म ऑफ जीपी. A12 निकालना है हमने. whose 8th term is given. 8th term is 192 and common ratio R is 2. So we know that A8 is equal to, A8 will be A into R to the power n minus 1, 8 minus 1. So this will be A into R to the power 7. So this A8 is given 192. That means A R to the power 7 is 192 or R is given 2. So A into 2 की power 7 is 192. So we can say A is equal to 192 upon 2 the power 7. So इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 192 upon 2 the power 7 is 128. So now इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 48/32 and it is equal to, फर्दर 4 से डिवाइड कर लेते हैं. देन फिर फर्दर 4 से. So finally value of A is equal to 3/2. Now we have to find out 12th term. So A12 is equal to A into R to the power 12 minus 1. So it is A R to the power 11. So A12 will be equal to, A की value is 3/2 and R is given 2. So 3/2 into 2 की power 11. So ये आ जाता है, देखिएगा, it is equal to 3/2 into 2 की power 11 is 1024 into 2. This is 2 की power 11. So 2 से 2 cancel out हो जाएगा. Now 1024 multiplied by 3 is equal to 3072. So A12 will be equal to, for this series, A12 will be equal to 3072. क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है the 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S respectively, so that Q square is equal to PS. So it is given that
A5 is P, A8 is given Q, and A11 is given S. So now A5 देखिएगा फॉर्मूला यूज करना है हमने जीपी के लिए ए एन इजकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन. सो A5 का मतलब क्या है? A5 इजकल टू ए इंटू आर की पावर 5 माइनस वन. So A5 is given P, that means AR to the power 4 is given P. Now A8 का मतलब क्या है? AR to the power 7 and it is Q. A11 का मतलब है AR to the power 11 minus 1 means AR to the power 10 and it is given S. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 एंड इसको 3 मान लेते हैं. नाउ इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे और हमने प्रूव करना क्यू स्क्वायर इजकल टू पी एस. सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज क्यू स्क्वायर. सो क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 से हम क्यू की वैल्यू रख सकते हैं. सो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए आर टू द पावर 7 स्क्वायर. So it will be equal to a square into r to the power 7 into 2. Finally we can say q square is equal to a square r to the power 7 into 2 is 14. So let this equation is 4. Now take right hand side and right hand side is ps. So ps is equal to p की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखेंगे a r to the power 4 इंटू एस की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखेंगे. इट इज ए आर टू द पावर 10. सो पी एस विल बी इक्वल टू ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10 इज आर की पावर 4 प्लस 10. सो पी एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर 14. लेट दिस इक्वेशन 5. सो इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5. सो वी कैन से equation 4 is 5 means q square is equal to ps. यही हमने प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म मीन्स A4 is given square of its second term. So second term A2. So A4 is given A2 square. Now and the first term is given minus 3. So A1 is given minus 3. Determine its seventh term. So we have to find out seventh term. A7 we have to find out. So it is given that A4 is equal to A2 whole square. So A4 for GP is A r to the power 3. Using this formula, A4 will be equal to A into R 4 minus 1. So AR3. So it is A2. A2 means A2 is equal to A in AR. So it is AR square. Now AR to the power 3 is equal to, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर आ जाता है. So we can say देखिएगा ए आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. सो यहाँ पर ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगी आर स्क्वायर से. तो यहाँ पर बचेगा आर बाई ए इज इक्वल टू 1. नाउ A1 यानी फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं. सो ए इज गिवन -3. सो यहाँ वैल्यू रख देते हैं r अपॉन -3 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स r इज इक्वल टू -3. सो वी हैव a इज इक्वल टू -3 एंड r इज इक्वल टू -3. बोथ वैल्यू आर सेम. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेवन टर्म. सो A7 विल बी इक्वल टू a इंटू r टू द पावर 7 minus 1. सो A7 विल बी इक्वल टू a r टू द पावर 6. A7 A और R की वैल्यू रख देते हैं इसमें -3. R इज -3 की पावर 6. सो इट इज -3 टू द पावर 1 plus 6. So A7 will be equal to -3 की पावर 7. So
दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इसको फर्दर हम a7 को अगर हम एक्सटेंड करें -3 की पावर 7, यानी माइनस की पावर 7 नेगेटिव आंसर आएगा, एंड 3 टू द पावर 7 इज 2187। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है पार्ट ए में, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज 128, 2 इज 128। तो पार्ट ए का देखिएगा, पार्ट ए में फर्स्ट टर्म इज 2 और कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो इज 2√2/2, सो कॉमन रेशियो इज √2। नाउ विच टर्म इज 128? so an is 128, let nth term is 128, so we can say nth term का formula is a r to the power n minus 1, it is 128, so we can say a की value is 2, r to the power n minus 1 is equal to 128, 2 को हम साइड चेंज करेंगे, so we can say r to the power n minus 1 is equal to 128/2, and 128/2 is 64, so r to the power n minus 1 is equal to 64. now r की वैल्यू, we know that r is √2, so √2 की पावर n minus 1 is 64, 64 is to the power 6. now this √2 is 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 the power n minus 1 is 2 की पावर 6, so this 2 की पावर हो जाती है n minus 1/2 is 2 की पावर 6, so by law of exponents we can say here base is same, so we can say n minus 1/2 is equal to 6, that means n minus 1 is 12, or we can say n is equal to 12 plus 1 is 13. so यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाता है which term means 13th term is 128, ये आंसर होगा। पार्ट बी करते हैं, सो पार्ट बी देखेगा, √3 is 729, यानी फर्स्ट टर्म इज √3 and r will be 3/√3, मीन्स 3/√3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 is √3 into √3, so r आ जाता है √3. now an is given 721, that means an means a r to the power n minus 1 is 720, this is 1, 721, no, it is 729, so it is 729. now a की वैल्यू is √3 and r is √3 to the power n minus 1 is equal to 729. so इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, √3 की पावर 1 इंटू √3 की पावर n minus 1, so इसको हम कह सकते हैं कि इट इज √3 की पावर 1 plus n minus 1, it is equal to 729. so √3, it is √3 to the power n is 729. so अब √3 को हम लिख सकते हैं, देखेगा 3 की पावर 1/2, so 3 to the power 1/2, और ये हो जाता है 3 to the power 720 के 9 को हम कह सकते हैं 3 to the power 6. okay, so this 3 to the power 1/2 और इसकी पावर हमने n रखनी पड़ेगी, so we can say 3 की पावर n/2 is 3 to the power 6, so n/2 is equal to 6. now we can say n is equal to 12. so question 5 का पार्ट बी के लिए, which term of this is 729, means 12th term is 729, ये आंसर होगा। पार्ट सी के लिए
पार्ट सी करते हैं अब। सो इस पार्ट में देखिएगा a इज 1/3 एंड r की वैल्यू इज 1/9 अपॉन 1/3। सो ये आ जाता है 3/9 means it is 1/3. So a is 1/3, r is 1/3. Now an is equal to a r to the power n minus 1 और an दिया हुआ है 1/19683. So this is equal to a is 1/3 and r is 1/3 to the power n minus 1. तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1/19683 को हम लिख सकते हैं 1/3 to the power 9. So this is equal to 1/3 to the power 1 plus n minus 1. So इस साइड चेंज कर लेते हैं. So 1/3 की पावर 1 से 1 कैंसिल होके n आ जाता है. इट इज इक्वल टू 1/3 की पावर 9. So this means n is equal to 9. So part C में ninth term is this. ninth term आंसर होगा. क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन GP. सो देखिएगा फॉर व्हाट वैल्यू मीन्स अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो सेम होगा. मीन्स वी कैन से यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. सो xy -2/7 it will be equal to -7/2 upon x. So that means अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें so x square is equal to -7/2 into -2/7. तो x स्क्वायर आ जाता है. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 2 से 2 कैंसिल होगा. -7 से 7 एंड माइनस इंटू माइनस इज +1. सो x स्क्वायर इज 1. इट मीन्स x इज इक्वल टू √1. सो वी कैन से x इज इक्वल टू ±1. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 7 करते हैं. इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10. सो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टर्म इज 0.15 and the common ratio is 0.015 divided by 0.15. So इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि this will be equal to 0. देखिएगा 0.15 अपॉन 0.15 को हम ये चेंज कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं. सो यहाँ पर 100 आ जाएगा और नीचे 1000. सो 20 से 20 कैंसिल, ये पॉइंट हट गया. 15 से 15. सो r इज इक्वल टू 1/10. सो r की वैल्यू इज 1/10 लिख लेते हैं यहाँ पर और 1/10 इज इक्वल टू 0.1. So 20 terms, sum of 20 term. So formula for SN का formula लिख लेते हैं. It is a1 minus r to the power n upon 1 minus r. क्योंकि if r is less than 1, for r is less than 1. So here r is less than 1, तो ये formula में apply करेंगे. So S20 will be equal to a into 1 minus r to the power 20 upon 1 minus r. अब a और r की वैल्यू रख देते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू 0.15 1 minus 0.1 to the power 20 upon 1 minus 0.1. So S20 will be equal to 0.15 divided by ये आ जाता है 0.9. दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 minus 0.1 to the power 20. अब इस 0.15 अपॉन 0.9 को सॉल्व कर लेते हैं. सो 0.15 अपॉन 0.9. सो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉइंट हटाने के लिए और नीचे 100
So it will be 15 by 90. So 15 by 90 means 1 by 6. 15 1 जा 50, 15 6 जा 90. So इसको हम फाइनली कह सकते हैं कि S20 is equal to 1 by 6, 1 minus 0.1 to the power 20. ये आंसर आ जाएगा S20 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फर्स्ट टर्म इज √7 और रेशियो, कॉमन रेशियो इज √21 अपॉन √7. √21 को लिख सकते हैं हम √3 √7 डिवाइडेड बाई √7. सो r इज √3. r की वैल्यू √3 मीन्स r इज ग्रेटर देन 1. सो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. अब हम n s, ये देखिएगा n टर्म्स यानी Sn ही निकालना है. सो Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू रख देते हैं. a इज √7, r इज √3, सो √3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1. अब इस डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर सकते हैं. सो √3 प्लस 1 से रेशलाइज कर देते हैं. सो √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से हमने रेशलाइज कर दिया. सो ये आ जाता है नीचे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 यानी a आ गया a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म में. सो इट विल बी √3 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में √7, √3 प्लस 1 पहले लिख लेंगे एंड √3 की पावर n माइनस 1. सो फाइनली ये आ जाता है, देखिएगा √7, √3 प्लस 1, √3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब √3 स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर इज 3 एंड 1 स्क्वायर इज 1. सो नीचे ये आ जाता है 2. सो ये Sn आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, टर्म्स दिए हुए 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब अप टू n टर्म्स एंड a इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. सो फर्स्ट टर्म a इज 1 एंड रेशियो फाइंड करें. रेशियो इज माइनस a बाई 1. सो रेशियो इज माइनस a. नाउ ratio is minus a, so we have to find out Sn. So Sn will be equal to, फॉर्मूला यहाँ पर Sn का लगेगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r. सो वैल्यू रख देते हैं a और r की. सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एंड r इज माइनस a, यहाँ पर माइनस मिस हो गया है. सो r इज माइनस a की पावर n आ जाता है अपॉन 1 माइनस माइनस a. सो Sn फाइनली इट इज इक्वल टू 1 माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है. सो इट इज 1 प्लस a. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10. इसमें फर्स्ट टर्म इज गिवन x3 x क्यूब, r इज इक्वल टू x5 बाई x3. सो r इज इक्वल टू x स्क्वायर. Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं और x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिया हुआ है. सो हियर Sn विल बी इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. So Sn is equal to a की वैल्यू इज x क्यूब, 1 माइनस r इज x स्क्वायर. सो x स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस r इज x स्क्वायर. सो Sn इज इक्वल टू x क्यूब, 1 माइनस x की पावर 2n हो जाता है अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इवेल्युएट
summation k is equal to 1 to 11 2 plus 3 to the power k. तो इस सीरीज को ओपन कर लेते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू 11. सो ये टर्म k इज इक्वल टू 1 से 11 तक ये एडिशन होगा इसका. सो k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 11 तक हम रखेंगे. सो these will be 1 plus 3 की पावर 1, देन 2 plus 3 की पावर 1 पहला टर्म होगा. k इज इक्वल टू 2 के लिए 2 दूसरा टर्म आएगा 2 plus 3 की पावर 2. k इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरा टर्म आएगा 2 plus 3 की पावर 3 प्लस 2 plus 3 की पावर 4 और ऐसा 11 टाइम्स चलेगा क्योंकि k इज इक्वल टू 1 2. सो इट इज 11 times, or we can say 11 times, 11 terms कह सकते हैं, 11 terms, TERMS. सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 2 plus 2 plus 2, 11 terms. इसको अलग अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 1 plus 3 की पावर 2 plus 3 की पावर 3 and so on, 11 terms. अगर हम 2 को 11 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी 2 into 11. सो प्लस, और ये हमारी आ जाती है जीपी. इस जीपी के लिए क्योंकि यहाँ पर a फर्स्ट टर्म इज 3 एंड r इज 3 की पावर 2 upon 3 की पावर 1, इट इज 3. सो r इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn जीपी के लिए. Sn इज इक्वल टू a r to the power n minus 1 upon r minus 1. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो ये 2 into 11 हो जाता है और ये आ जाता है, यानी इसको S11 कहेंगे हम. S11 फाइंड करना है हमने इस सीरीज के लिए. सो इट विल बी a की वैल्यू इज 3, r इज 3, r की पावर n minus 1 अपॉन, और n जो होगा वो 11 होगा, n विल बी 11 टर्म्स है. सो r इज 3, 3 minus 1. सो फाइनली ये आ जाता है 22 प्लस 3 minus 1 is 2, 3/2, 3 की पावर 11 minus 1. क्वेश्चन 12 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. So sum of first 3 term of GP is this. और अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और फर्स्ट 3 टर्म हमने कंसीडर करने हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर. तो इस कंडीशन में हमने ए बाई आर, ए एंड ए आर, ये 3 टर्म्स को हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है. सो देयर प्रोडक्ट इज 1. सो इस अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सो इस वजह से हम ए बाई आर, ए और ए आर, इनको हम सेलेक्ट करेंगे. सो प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट इज 1. सो ए बाई आर इंटू ए आर इज 1. आर से आर कैंसिल हो गया, मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 1. a cube is equal to 1. So we can say value of a is equal to 1. So a is equal to 1. Now their sum is given 39/10. So a by r plus a plus ar is equal to 39/10. a की वैल्यू रख देते हैं, a is equal to 1 रखने से ये आ जाता है 1 by r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10. r एलसीएम ले लेते हैं. r एलसीएम लिया, 1 को 1 by 1 कह सकते हैं, r को r by 1. सो इट इज हियर 1, r आएगा यहाँ r स्क्वायर आएगा, इट इज इक्वल टू 39/10. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. यह आ जाता है 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r. सो मीन्स 10r स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं.
10r square plus it is 10r minus 39r plus 10 is equal to 0. तो इससे इक्वेशन आ जाती है 10r square minus 29r plus 10 is equal to 0. इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. सो 10 इंटू 10 इज 100 एंड 25 इंटू 4 इज 100. तो ये आ जाता है 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज 0. फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 5r, सो इट इज 2r माइनस 5. यहाँ पर कॉमन 2 आ जाता है, 2r माइनस 5 बचेगा. फर्दर 2r minus 5 is common, so it is 5r minus 2, so this is equal to 0. So if 2r minus 5 is 0, we can say r is equal to 5 by 2, and if 5r minus 2 is 0, that means r is equal to 2 by 5. So when r is 5 by 2, the टर्म्स आर, क्योंकि टर्म्स हमने लिए हुए ए बाई आर, ए एंड ए आर, सो इसमें वैल्यू रख देते हैं. ए इज 1, सो टर्म्स आर 1 बाई आर, 1 एंड 1 इंटू आर. सो टर्म्स विल बी ए बाई आर मीन्स 1 अपॉन आर मीन्स 2 by 5. नेक्स्ट टर्म विल बी ए, इट इज 1. नेक्स्ट टर्म विल बी ए आर, so it will be 5 by 2. And when r is 2 by 5, so the terms are first term will be 5 by 2. ये हमने इसको यूज करना है तीनों टर्म के लिए. नेक्स्ट विल बी 1 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 2 by 5. क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव सम 120. तो सम दिया हुआ है 120 एन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि जिसका कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी 120. सो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, और अगर r देखें r इज 3 स्क्वायर अपॉन 3, सो r इज 3. सो r इज ग्रेटर देन 1. सो Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 एंड इट इज गिवन 120. सो a की वैल्यू 3 रख देते हैं, r टू द पावर r दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 रख देते हैं हम. सो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 120. सो ये आ जाता है 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 3 माइनस 1 2 होगा, 2 इधर आके नोमिनेटर में आ जाएगा और ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो ये आ जाता है 14 इंटू 2 इज 80. सो 3 टू द पावर n माइनस 1 इज 80. सो 3 की पावर n, और इसको हम कह सकते हैं देखिएगा 3 की पावर दिस इज n माइनस 1, n माइनस 1. सो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1. सो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81, और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 81 होता है. 81 is 3 into 3 into 3 into 3. So 3 to the power n is 3 to the power 4. So we can say n is equal to 4. So how many terms means 4 terms of GP are needed to give sum 120. क्वेश्चन 14 करते हैं. क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum to n terms of GP. तो sum of first 3 terms means first 3 terms क्या क्या होंगे, a plus ar plus ar square is given 16. तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं. ए कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इज गिवन 16. लेट दिस इक्वेशन इज 1. नेक्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी ए आर
cube plus AR 4 plus AR 5. So sum of next three terms is given 128. AR cube is common, so it is 1 plus R square is equal to 128. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. Now equation 2 divided by equation 1. So equation 2 को लिखते हैं पहले AR cube 1 plus R square. This divided by A 1 plus R square. So this is 128 by 16. A से A कैंसिल हो गया और 1 plus R square से 1 plus R square कैंसिल हो गया. So R3 is equal to 128 by 16 is equal to 8. So R3 is equal to the power 3. So we can say R is equal to 2. R की वैल्यू 2 आ गई. अब R की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे. So putting R is equal to 2 in equation 1. So A 1 plus R square is 16. So A R की वैल्यू रख देते हैं 1 plus 2 square is 16. So A into 1 plus 2 square is 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7. So A into 7 is 16. So A आ जाता है 16 by 7. तो इसमें डिटरमाइन फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, ये आंसर होगा. एंड कॉमन रेशियो एक आंसर ये होगा. एंड सम टू एन टर्म्स, तो Sn हमने निकालना है. सो Sn क्योंकि R यहाँ पर हमने देखना कितना है, R इज ग्रेटर देन 1. सो एज R इज ग्रेटर देन 1 तो सम के लिए फॉर्मूला लगेगा A R to the power n minus 1 divided by R minus 1. So Sn will be equal to A की वैल्यू रख देते हैं 16 by 7. R to the power n means to the power n minus 1 upon R minus 1 is 2 minus 1. So finally Sn आ जाता है 16 by 7 to the power n minus 1 upon यही आएगा upon 1 आएगा, तो इसको यही लिखेंगे. So Sn will be equal to 16 by 7 to the power n minus 1. तो ये आंसर होगा. क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64. डिटरमाइन S7. सो सेवंथ टर्म का मतलब क्या है, A7. सेवंथ टर्म इज 64. सो सेवंथ टर्म हो जाएगा A R to the power 7 minus 1, इट इज 64. सो A R की पावर 6 इज 64. So R की पावर 6 और A की वैल्यू इज 729. So this is 64. R की पावर 6 is equal to 64 by 729. So R to the power 6 is equal to 2 upon, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6. So R की पावर 6 is equal to 2 upon 3 की पावर 6. इससे हम R की वैल्यू आ जाती है R is equal to 2 by 3. And this value 2 by 3 we can say it is less than 1. So R is less than 1. So हमने S7 निकालना है तो फॉर्मूला Sn का लगाएंगे हम. R less than 1 के लिए फॉर्मूला होता है A 1 minus R की पावर n अपॉन 1 minus R. So A की वैल्यू is 729. 1 minus R 2 by 3 to the power n अपॉन 1 minus 2 by 3. और 1 minus 2 by 3 नीचे आ जाएगा 3 LCM. सो इट इज 3 minus 2. 3 minus 2 आएगा. सो यहाँ आ जाएगा 729 इंटू 1 minus 2 by 3 to the power n. सो Sn फाइनली आ जाता है 729 1 minus 2 by 3 to the power n. और नीचे आएगा 1 by 3. तो ये 1 by 3 ये इधर आ जाएगा, देखिएगा
1/3 को यहाँ लिख सकते हैं. सो Sn विल बी इक्वल टू, इसको 729 इंटू 3, 2187, 1 minus 2/3 की पावर n. Now we have to find out S7. So S7 will be equal to 2187 into 1 minus 2/3 to the power 7. So इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Now S7 is equal to 2187 bracket 1 minus 2 की पावर 7 upon 3 की पावर 7. So it is equal to 2187. Now it is 3 की पावर 7 minus 2 की पावर 7 upon 3 to the power 7, and it is equal to 2187. 3 to the power 7 is 2187 minus 2 की पावर 7 is 128 divided by 3 की पावर 7 is 2187. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो S7 is equal to 2187 minus 128. So और this difference is 2059. So S7 की वैल्यू is 2059. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज, sum of first two term is given -4. So sum of first two term is S2 is given -4, and the fifth term means A5 is 4 times the third term. 4 times the third term is A3. This is given. So A5 is 4 times A3. So A5 क्या होगा? A into R to the power 4. It is 4 into A3 होता है AR square. So A से यहाँ A कैंसिल हो गया. So R to the power 4 divided by R square is equal to 4. It means R square is 4. तो इससे R की वैल्यू आ जाती है +-2. So R is +-2. Now S2 is given -4. So R की वैल्यू हम +2 और -2 लेके इसको सॉल्व करेंगे. So when R is +2, so R is greater than 1. It means R is greater than 1. So Sn का फॉर्मूला लगेगा A R की पावर n-1 अपॉन R-1. So S2 आ जाता है, S2 is A into R to the power 2 minus 1 divided by R-1. अब हम S2 is given, S2 is -4. तो यहाँ A की वैल्यू देखिएगा हम फाइंड करेंगे. सो A R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है? हमने 2 मानी हुई है. सो 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 -1 is -4. So A into 2 square -1 is 2 square is 4, 4 minus 1, so it is 3. और नीचे 1 आ जाता है, it is -4. So इससे A की वैल्यू आ जाती है, A is -4/3. So ये कहता है कि if GP of which sum of first two term is -4, fifth term is this, fifth term find a GP. Fifth term is 4 times the third term, find a GP फाइंड करनी है. So GP के लिए GP लिख लेते हैं यहाँ पर. So GP जो होगी, यानी पहला टर्म AR स्क्वायर एंड सो ऑन. तो A इज -4/3 और R इज 2 +2 लेके हमने किया हुआ है. सो A में यानी इसमें +2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाता है -8/3. फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है +2 को, तो -16/3 एंड सो ऑन. तो ये जीपी होगी R इज इक्वल टू 2 के लिए. नाउ व्हेन R इज -2, तो R -2 के लिए फॉर्मूला लगेगा. देखिए Sn इज इक्वल टू A1 - R की पावर n, क्योंकि R यहाँ पर -2 मीन्स लेस देन 1 हो गया.
so upon 1 minus r. So Sn is given, this is given -4. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. a 1 minus r is -2 की पावर n upon 1 minus -2 is -4. तो इसको हम कह सकते हैं a इंटू 1 minus -2 की पावर n इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि n की वैल्यू 2, क्योंकि S2 इज गिवन -4, तो n हमने 2 रखना पड़ेगा. वो 10 इज इक्वल टू 2 हियर. ओके, सो अपॉन ये आ जाता है 1 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू -4. n की वैल्यू हमने 2 रखा, तो ये आ जाता है a 1 minus -2 की पावर 2 is 4. So 1 minus 4 upon 1 plus 2 is 3 is equal to -4. तो हम कह सकते हैं a multiplied by -3 upon 3 is -4. So 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस means a is equal to 4. So a is 4, तो gp बन जाएगी. पहला टर्म 4 होगा, दूसरा टर्म यहाँ पर r -2 लिया है, तो दूसरा टर्म ar होगा. So AR means -8 आ जाएगा. A into R, A is 4, R is -2. Next term means -2 multiply करने से मिलेगा. So it will be, next term will be 16, then -32, then 64 and so on. So this GP is for R is equal to -2 और ये GP is for R is equal to 2. क्वेश्चन 17 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी. सो फोर्थ टर्म का मतलब क्या है? फोर्थ टर्म इज गिवन एक्स, सो इट इज गिवन दैट फोर्थ टर्म यानी a4 इज x, a10 इज y, a16 is z. So इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. a4 का मतलब ar क्यूब is x, a10 means ar to the power 9 is y, और a16 means ar की पावर 16 minus 1 means ar की पावर 15 is z. So to prove, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं. So to prove x, y, z are in GP, that means y square is xz. If we prove this, so we can say if y square is xz, then we can say x, y, z are in GP. So y square ले लेते हैं. y square is equal to a r to the power 9 का square. So it is a square r to the power 18. Now इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं. xz, so xz is equal to x is ar cube, z is ar 15, so it is equal to a square r to the power 18. Equation, so equation 4 is equation 5, means y square is x into z. So we can say it means x, y, z are in GP. क्वेश्चन 18 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस लिख लेते हैं. 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 times 8 plus and so on. So Sn is equal to this. So now 8 कॉमन ले लेते हैं. 1 plus 11 plus 111 plus 4 times 1, और इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा. So it is equal to, अब हमने 9 से इसको रेशलाइज कर देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 9 plus 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 99 plus 999 plus 4 times 9, नेक्स्ट 5 times 9 एंड सो ऑन आता चला जाएगा.
अब देखिएगा 8/9 के बाद ब्रैकेट के अंदर 9 को हम 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 100-1 लिख सकते हैं, 999 को 1000-1 लिख सकते हैं और इसको 10,000-1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। नाउ इट इज इक्वल टू 8/9। अब देखिएगा क्योंकि ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स आर देयर, n टर्म्स दिया हुआ है, n टर्म्स, तो यहां भी n टर्म्स आएगा, n टर्म्स, तो ये हो जाएगा। देखिएगा इसको 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये अलग कर लेते हैं। 10 इज 10 की पावर 1 प्लस 100 इज 10 की पावर 2 प्लस 1000 इज 10 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर 4। नेक्स्ट ये आएंगे n टर्म्स तक, 2 n टर्म्स। तो एक हमने पेयर ये बना लिया, रीअरेंज कर लिया इन टर्म्स को, और बाकी बचेगा देखिएगा, या माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 और ये भी n टर्म्स। अब 8/9 अगर फर्स्ट टर्म को हम देखें ब्रैकेट के अंदर, दिस इज जीपी। सो जीपी ये हम अलग से लिख देते हैं, 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू a, क्योंकि r देखिएगा a क्या है यहाँ पर 10 और r इज 10 की पावर 2/10 की पावर 1, r इज 10, सो r इज ग्रेटर देन 1, सो Sn का फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n-1/r-1। सो यहाँ Sn आ जाता है इस सीरीज के लिए, Sn इज इक्वल टू a इज 10, r की पावर n, r इज 10, 10 की पावर n-1 अपॉन r-1 10-1, तो ये आ जाता है 10 × 10 की पावर n-1 अपॉन 9। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 10/9, 10 की पावर n-1, सो माइनस 1 + 1 + 1 n टाइम्स का मतलब होता है 1 × n। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 8/9 और 10/9, 10 की पावर n-1, -1 × n इज n। सो ये आंसर होगा इस सीरीज का। क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 8 16 32 और इसको प्रोडक्ट करना है, यानी 128 से सेकेंड टर्म इज 32, थर्ड 8 2 एंड 1/2। तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करना है, यानी फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 2 × 128 256 एंड 4 इंटू, यानी 2 को इससे करेंगे, 4 को 32 से, 8 को 8 से, 16 को 2 से, 32 को 1/2 से। सो 4 × 32 इज 128, then 8 × 8 64, 16 × 2 32, 32 × 1/2 is 16. So this will be the product. Now we have to find out sum of the product. So our question is Sn is equal to 256 plus 128 plus 64 plus 32 plus 16. So यहाँ पर n is 1 2 3 4 5, first term is 256 and ratio की बात करें, this is GP. So ratio is 128 divided by 256. So we can say R की value is 1/2. So S5 हमने निकालना है क्योंकि these are 5 terms. So S5 will be equal to, फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि Sn is equal to R is less than 1. As R is less than 1 के लिए फॉर्मूला लगेगा Sn is equal to A 1 minus R to the power n divided by 1 minus R. So S5 will be A is 256, 1 minus R is 1/2, 1/2 की पावर 5 - 1 हो जाता है,
नहीं 5 r टू द पावर n है यहाँ पर, सो दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, सो ये आ जाता है 256 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड 1 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 256 इंटू ये आ जाता है 256 इंटू 2 एंड 1 माइनस 1 की पावर 5 इज 1 एंड 2 की पावर 5 दिस इज 32, सो 256 इंटू 2 और 32 माइनस 1 अपॉन 32, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो 256 इंटू 2 इंटू 31 अपॉन 32, तो ये 16 टाइम जाएगा, ये 16 टाइम्स 16 इंटू 31 इज 496, सो S5 यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी 496, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है, शो दैट द products of the corresponding terms of the sequences AR square AR n minus 1 and AR square AR to the power n minus 1 form a GP and find the common ratio। R फाइंड करना है इसमें, सो पहले टर्म लिख लेते हैं, टर्म्स क्या क्या हैं, A then AR then AR square, इस तरह से AR to the power n minus 1, इनको मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, A को A से मल्टीप्लाई करना है और AR को AR से, कैपिटल AR से, इसको कैपिटल AR स्क्वायर से एंड सो ऑन, दिस कैपिटल AR टू द पावर n minus 1, सो ये मल्टीप्लाई करने से देखिएगा A को A से, AR को इससे, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, सो इट बिकम्स A इंटू A, सेकेंड टर्म बिकम्स A पहले लिखेंगे और एंड R इंटू R, इसी तरह से ये बन जाता है A R स्क्वायर एंड सो ऑन A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 इंटू R टू द पावर n माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AA, सो AA RR, इसके बाद इसको लिखेंगे हम AA RR होल स्क्वायर, इसको AA R टू द पावर n minus 1 लिख सकते हैं, सो वी हैव टू शो दैट दिस फॉर्म ए GP, क्योंकि हम देखिएगा, अगर हम देखें ये GP फॉर्म करेगी तो रेशियो सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म का रेशियो यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म divided by second term this is equal to and so on AA upon R to the power n minus 1, और इससे प्रीवियस टर्म होगा इसी तरह से AA R टू द पावर, इससे प्रीवियस टर्म होगा देखेगा n minus 2, ये पावर प्रीवियस टर्म की पावर सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, देखिए AA सब में सेम है और RR की पावर इंक्रीज होती चली जाइए, तो यहाँ पर प्रीवियस टर्म की जो पावर होगी वो 1 कम होगी, तो यहाँ पर RR की पावर n माइनस 1 होगी, तो ये इसको हम रेशियो, कॉमन रेशियो कहते हैं, सो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू RR, सो दिस इक्वेशन 1 इज GP, यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन 20 में। 21 करते हैं, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो 4 नंबर्स हमने फाइंड करना है इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9
So third term is A3 third term is greater than the first term by 9. So third term is equal to first term plus 9. This is given, equation 1. And the second term is greater than the fourth term by 18, means second term A2 is equal to फोर्थ टर्म A4 प्लस 18. इन इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. फॉर्मूला हमारे पास है an इज टू a r टू द पावर n माइनस 1. तो इससे a1 a2 a3 की वैल्यू रखेंगे. सो देखिएगा a3 तो आ जाता है a r स्क्वायर, a2 आ जाता है a r, एंड a1 विल बी इक्वल टू a and a4 will be equal to ar3. इन वैल्यूज को इक्वेशन में रख देते हैं. तो a3 is equal to a1 plus 9. a3 means ar square. ar square is equal to a1 is a plus 9. So we can say ar square minus a is equal to 9. So now a is common. r square minus 1 is equal to 9. So a r square minus 1 is equal to 9. इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं. इसी तरह से ये हमने इक्वेशन 2 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. a2 का मतलब ar, a4 इज ar क्यूब प्लस 18. सो हम कह सकते हैं कि ar माइनस ar3 इज 18. नाउ ar यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं. तो ये आ जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर इज 18. और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं a 1 माइनस आर स्क्वायर इज 18, इक्वेशन 4. अब हम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 करेंगे. सो a आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a 1 माइनस आर स्क्वायर इज 9 बाई 18. a से a कैंसिल हो गया. माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर. 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए आर कॉमन है तो ये आर लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ लिख लीजिएगा. सो ये आ जाता है यहाँ पर ए से ए कैंसिल होके यहाँ आर बचेगा. सो लिख लेते हैं. सो इट इज 9 बाई 18 मीन्स 1 बाई 2. 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r इज इक्वल टू माइनस 2. r की वैल्यू माइनस 2 आ गई और इस r को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज 9. सो a r माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज 9. सो a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 is 9. So a is equal to 9 upon 4 minus 1 is 3. So means a is equal to 3. So a is 3 and r is minus 2. अब हमने gp शो करना है 4 numbers of gp. So gp देखेगा पहला a ar square then ar cube. इसमें वैल्यूज रख देते हैं. a is 3. Then 3 into minus 2 is minus 6. Then AR square will be 12 and AR cube will be minus 24. So first 4 terms will be 3 minus 6, 12 and minus 24. तो ये आंसर होगा. क्वेश्चन 22 करते हैं. इफ द pth qth and rth term of gp are a b and c, so respectively prove that a की पावर q minus r, b की पावर r minus p, c की पावर p minus q इक्वल टू 1. तो pth टर्म यानी ap दिया हुआ है x, ap is x, सॉरी. सो AP इज A दिया हुआ है और QH मीन्स AQ इज B, RH इज C. सो इसको हम इक्वेशन की फॉर्मूला लिख लेते हैं. AP का मतलब होता है, इसमें देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे हम AN इज इक्वल टू A R टू द GP का फॉर्मूला n माइनस 1. लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि ये A दिया हुआ है
यहाँ पर हम कैपिटल ए कंसीडर करेंगे। सो ए पी का मतलब क्या है, एन की जगह पी रख दीजिएगा। सो ए कैपिटल ए आर की पावर p minus 1, this is a. Similarly aq means a, r की पावर q minus 1 is b. इसी तरह से ar is c means a कैपिटल a into r की पावर, देखिएगा n minus 1 means r minus 1 is equal to c. और क्योंकि ये r, this is ratio, ओके, एंड दिस r is term, तो इसको हम कैपिटल r मान लेते हैं, इसको भी कैपिटल R मान लेते हैं। लेट दिस कैपिटल R, ये कंफ्यूज नहीं करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 1, सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज a टू द पावर q माइनस r, v टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो a इज a कैपिटल R की पावर p माइनस 1, a हमने रख दिया, इसकी पावर q माइनस r हो जाती है। b रख देते हैं a r की पावर q माइनस 1 टू द पावर r माइनस p। c रख देते हैं, c इज a कैपिटल R की पावर r माइनस 1, इसकी पावर हो जाती है p माइनस q। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, सो ये आ जाती है a की पावर q माइनस r। और देखिएगा फर्स्ट टर्म को, यानी ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे और a वाली पावर्स को हम पहले लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म का a की पावर q माइनस r, सेकेंड टर्म का इंटू a की पावर r माइनस p, इसी तरह से थर्ड टर्म का a की पावर p माइनस q लिख लेते हैं। अब अदर टर्म्स जो बचे हुए हैं उनको लिख लेंगे। सो ये हो जाता है r की पावर p माइनस 1 q माइनस r इंटू r की पावर q माइनस 1 r माइनस p इंटू r की पावर r माइनस 1 p माइनस q। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर हो जाता है, देखिएगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर r की पावर, ये सब पावर ऐड हो जाएंगी, यानी p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब ये हो जाता है q से q कैंसिल, p से p, r से r, सो a की पावर 0, और यहाँ पर r की पावर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यानी ये हो जाता है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। सो ए की पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू, क्यू आर प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर, प्लस पी आर से माइनस पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस पी से प्लस पी, एंड माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाता है। सो इट इज आर की पावर 0। सो इट इज 1 इंटू आर की पावर 0 इज ऑल्सो 1, सो इट इज 1। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP are A and B, so first term is A and nth term means an is given B respectively, and if P is the product of first n terms, so P is the product of first n terms, prove that P square is equal to AB to the power n. Now first term is given A1, first term means A1 is given, it is A, and nth term is given B. So nth term का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, means A r to the power n minus 1 is equal to B.
तो इसको इक्वेशन में मान लेंगे हम. Now P is the product of, this P is the product of n terms. So this P is A1, product of A1, A2, A3, A4 and so on up to AN. So first term is A, क्योंकि common ratio is R, second term will be AR, third term will be AR square, fourth term will be AR cube and so on, and nth term will be AR to the power n minus 1. तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म में तो R है नहीं और यानी सभी में A है, यानी हम कह सकते हैं कि A की पावर देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये कहां तक जाएगा टू n टर्म्स. यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि A की पावर देखिएगा A सभी टर्म्स में है और ये नंबर ऑफ टर्म्स आर n. और अगर हम R की बात करें, R पहले टर्म में नहीं है, R दूसरे टर्म से शुरू हो रहा है, तो R को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होंगे. ये गौर करने वाली बात है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं R की पावर देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये AP बन जाती है और ये 2n-1 टर्म्स. ये हमने यहाँ पर ध्यान रखना है. सो यहाँ जाता है A की पावर 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो 1 इंटू n आ जाता है, यानी A की पावर n, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n इज इक्वल टू n. नाउ दूसरे ब्रैकेट में अब इस सम को हम अलग से निकाल लेते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 2n-1 टर्म्स, ये हमारी AP होगी. दिस इज AP विद फर्स्ट टर्म A is 1, common difference is 1. So S or number of terms are n-1. So Sn-1 is equal to n by 2, n-1 by 2. 2 into A is 1 plus n is n-1 minus 1 and D is 1. ये फॉर्मूला लगेगा तो ये आ जाता है n-1 by 2, 2 plus n-2. So n-1 by 2 into n. तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये रख लेते हैं. सो R की पावर ये आ जाता है n-1 by 2. So this is P. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. Now we have to prove this is P. अभी इसको और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 नहीं मानते. सो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, इक्वेशन 2 मान लीजिएगा. चलिए, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा P स्क्वायर. सो P स्क्वायर विल बी इक्वल टू A की पावर n इंटू R की पावर n-1 बाई 2 का होल स्क्वायर. सो ये आता है A की पावर 2n इंटू R की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-1. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या है देखिएगा, राइट हैंड साइड इज AB की पावर n. तो A और V हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 V की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं. सो इट इज V इज AR की पावर n-1 और इसकी पावर n. सो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें. इट इज A स्क्वायर इंटू R की पावर n-1 की पावर n. सो AB की पावर n फाइनली आ जाता है A की पावर 2n into R की पावर n-1. Let this equation 4. So हम यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर देखें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 is equal to इक्वेशन 4. So we can say P square is equal to A, V की पावर n. यही हमने प्रूव करना था. क्वेश्चन 24 करते हैं. शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1 by r to the power n. So रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की बात करें तो ये GP क्या होगी देखिएगा, यानी
एस एन विल बी इक्वल टू फर्स्ट एन टर्म्स, यानी पहला टर्म ए, देन ए आर स्क्वायर ए आर, इसके बाद ए आर स्क्वायर, देन ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन. और nth टर्म क्या होगा? nth टर्म विल बी ए आर टू द पावर n minus 1. So first term a, second term ar, third term ar square and nth term will be ar to the power n minus 1. So ये कहता है कि sum of, so that the ratio of sum of first and, हमने sum of first n terms लिया हुआ है. So a plus ar square plus ar cube and so on plus. तो इनका sum देखिएगा क्या होगा. First term is a, ratio is r. So Sn will be equal to, formula लगेगा a r to the power n minus 1 divided by r minus 1. यहाँ पर हमने r greater than 1 कंसीडर किया हुआ है. सो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus n+1th टू nth टर्म. तो नेक्स्ट टर्म्स की बात करेंगे क्योंकि n टर्म्स तो हमने ले लिए. सो नेक्स्ट सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू nth टर्म की बात करेंगे. सो सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस इज गिव. ओके, ये हमने फाइंड करना है. नाउ अगर हम इसकी बात करें तो सीरीज बन जाती है. देखेगा n+1th टर्म, यानी इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए आर टू द पावर n. इससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर टू द पावर n+1. इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए आर की पावर n+2. और 2nth टर्म क्या होगा? ए आर टू द पावर 2n-1. ये हमने ध्यान रखना है. यहाँ पर इस सीरीज में ये जीपी थी, इसमें फर्स्ट टर्म वाज, यानी फर्स्ट टर्म इट वाज ए और रेशियो वाज आर. अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n. ये हमने ध्यान रखना है. फर्स्ट टर्म इज ए आर टू द पावर n एंड कॉमन रेशियो सी आर. कॉमन रेशियो इज, यहाँ पर भी r ही है. तो ये हमने SN1 इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट के लिए. और नाउ SN2 क्या है हमारा? SN2 इज इक्वल टू नेक्स्ट सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th टू nth टर्म. तो इन सब का सम. सो SN2 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म विल बी ए आर टू द पावर n और ब्रैकेट में रेशियो तो वही है r. और यहाँ पर टर्म्स कितने हो जाते हैं? अगेन देखिएगा, क्योंकि n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ये भी कितने होंगे? n टर्म्स होंगे. सो अगर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की, इट विल बी n, क्योंकि नेक्स्ट n टर्म की बात हो रही है. यहाँ पर फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही थी, यानी फर्स्ट n टर्म्स. तो यहाँ पर हमने टर्म्स जो लिए थे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमने n लिए थे. और यहाँ पर नेक्स्ट n टर्म की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर n+1 टर्म से 2nth टर्म की बात हो रही है. ये नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी कितने रहेंगे? n टर्म्स रहेंगे. सो इट विल बी r टू द पावर n-1 अपॉन r-1. सो ये हो जाएगा हमारा SN2. तो ये प्रूव करना देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ terms from this to this is 1 by r. So now SN1 upon SN2 हमने फाइंड करना है. It is equal to a r to the power n-1 divided by r-1 upon a r to the power n-1 divided by r-1. r-1 से ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, r to the power n-1 से ये कैंसिल हो गया. मीन्स SN1 upon SN2 is 1 upon r to the power n. यही हमने प्रूव करना है, क्योंकि दिस रेशियो इज 1 to the power r की पावर n. ये हमने प्रूव कर दिया.
क्वेश्चन 25 करते हैं. इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी then show that this is equal to this. So it is given that A, B, C and D are in GP. Let common ratio be R. तो फर्स्ट टर्म इज A, B सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म हो जाएगा AR, C will be equal to AR square third term and D will be equal to fourth term. This will be AR3. So इसको इक्वेशन मान लेते हैं. Now take left hand side. लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. अब A तो A ही है, A स्क्वायर, और B क्या है AR. सो इट इज AR होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते बड़ा ब्रैकेट, प्लस C का मतलब है AR स्क्वायर, तो C स्क्वायर विल बी AR स्क्वायर स्क्वायर. दूसरे ब्रैकेट में B इज AR, सो इट इज AR होल स्क्वायर, प्लस C इज AR स्क्वायर, सो AR स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस D इज AR क्यूब, सो इट विल बी AR क्यूब का होल स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R टू द पावर 4. नेक्स्ट ब्रैकेट में A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R4 आ जाता है, प्लस A स्क्वायर R6. अब A स्क्वायर पहले ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4. दूसरे ब्रैकेट से भी A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आ जाता है 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिएगा R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं. सो टेक R स्क्वायर कॉमन ऑल्सो, सो इट इज 1 प्लस यहाँ पर A स्क्वायर R स्क्वायर बचेगा प्लस A स्क्वायर यहाँ बचेगा R टू द पावर 4. So finally it is equal to A square is A की power 4 into R square, and this is 1 plus R square plus R की power 4 का square. So ये हम equation 1 मान लेते हैं. Now right hand side है AB plus BC plus CD का whole square. सो ये वैल्यू रख देते हैं, A इज A एंड B इज AR, प्लस B इज AR, C इज AR स्क्वायर, प्लस C इज AR स्क्वायर एंड D इज AR क्यूब. इसका स्क्वायर हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू A इंटू, यहाँ देखिएगा A इंटू A कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लेते हैं. यहाँ A मीन्स A स्क्वायर इज कॉमन, दूसरा R इज ऑल्सो कॉमन. सो ये बचेगा A स्क्वायर इंटू R 1. सो ये देखिएगा यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस, और यहाँ बच जाएगा, यानी एक R ले लिया तो R की पावर 4, दिस होल स्क्वायर. अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा A स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स A की पावर 4, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और R स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 का स्क्वायर. अब हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं. सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. सो वी कैन से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर into B square plus C square plus D square, this is equal to AB plus BC plus CD to the whole square. यही हमने प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है insert two number between 3 and 81 so that resulting sequence is AP. सपोज हमने G1 और G2 को इंसर्ट किया हुआ है एंड दिस इज इन GP. अगर ये GP है तो दिस 81 टर्म, 81 जो होगा दिस विल बी द फोर्थ टर्म, क्योंकि 2 टर्म हमने इंसर्ट किए हैं
और एडिशनल टर्म्स आर पहला और लास्ट का, यानी ये 81 इज द लास्ट टर्म एंड इट इज A4 फोर्थ टर्म. सो A4 इज 81 and first term is 3. So A4 क्या होता है? It is AR cube. It is 81. A की वैल्यू रख देते हैं 81. So R cube आ जाता है 81 by 3. So R cube is equal to 81 by 3 is 27 और 27 होता है 3 का क्यूब. So we can say R is equal to 3. So R की वैल्यू 3 आ जाती है. अब हम G1 फाइंड कर सकते हैं. G1 is AR और G2 होगा AR स्क्वायर. सो A और R की वैल्यू रख देते हैं. A is 3, R is 3, so G1 is 9 and G2 is AR square. A is 3 into 3 का square, so it is 3 square 9, 9 into 3 is 27. So insert two numbers. The two numbers are numbers inserted. Numbers are 9 and 27. क्वेश्चन 27 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन GM between A and B. So geometric mean GM between A and B. So if geometric mean between A and B, we know that this is under root AB. Okay, under root AB means A की power 1 by 2 into B की power 1 by 2. Now geometric mean दिया हुआ है A की power n plus 1. So we can say A की power n plus 1 plus B की power n plus 1 upon A की power n plus B की power n. ये geometric mean दिया हुआ है और geometric mean equation 1 से क्या है? It is A की power 1 by 2 into B की power 1 by 2. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा ये आ जाता है दिस अपॉन 1. सो A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू A की पावर n इंटू A की पावर 1 बाई 2 B की पावर 1 बाई 2 प्लस B की पावर n इंटू B की पावर 1 बाई 2 A की पावर 1 बाई 2. अब A की पावर n प्लस 1 इसको इधर ले जाइएगा, इसके साथ पेयर बना लेंगे A की पावर, और इसको हम कह सकते हैं A की पावर n प्लस 1 बाई 2. सो इट विल बी A की पावर n प्लस 1 बाई 2 इंटू B की पावर 1 बाई 2. इन दोनों टर्म को हमने सॉल्व कर लिया और इसको साइड चेंज कर दी. सो और इसको हम ले आएंगे माइनस, पहले ये टर्म लिख लेते हैं B की पावर n प्लस 1 और ये माइनस में आ जाएगा. इसी तरह से B की पावर n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू A की पावर 1 बाई 2. दिस विल बी 0. अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखेगा A की पावर n प्लस 1 बाई 2. तो A की पावर n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, फिर देखिएगा ये आएगा A की पावर 1 बाई 2. आप इसको देखिएगा साइड में हम कर लेते हैं A की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस 1 बाई 2. ये हमने करना है एक्चुअली, जब हमने A की पावर n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो A की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस 1 बाई 2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा पावर रूल से A की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 बाई 2. n से n कट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2. तो A की पावर 1 बाई 2 बचेगा, माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ B की पावर 1 बाई 2 बचा. अब यहाँ प्लस B की पावर n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं. सिमिलरली यहाँ B की पावर 1 बाई 2 बचेगा माइनस यहाँ A की पावर 1 बाई 2 बचेगा. सो दिस इज 0. नाउ कॉमन ले लेते हैं A की पावर 1 बाई 2 माइनस B की पावर 1 बाई 2. अब इस ब्रैकेट में बचेगा A की पावर n प्लस 1 बाई 2. और इसी तरह से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे.
तो फाइनली यहाँ माइनस आएगा b की पावर n प्लस 1/2। ये ध्यान रखिएगा, इसको कॉमन लेने से डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये कैंसिल आउट होगा और माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। सो दिस इज 0। या तो यहाँ पर देखिएगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इज 0। इससे पता चलता है कि a इज इक्वल टू b, बट a and b are different. A cannot be equal to b. So we will say, so finally we will say it means a की power n plus 1/2 minus b की power n plus 1/2, this will be 0. So this means a की power n plus 1/2 is equal to b की power n plus 1/2, और हम कह सकते हैं कि power n plus 1/2 upon b की power n plus 1/2, this is 1, और इसको हम सीधे लिख सकते हैं कि पावर v a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2, सेम पावर, और 1 को लिख सकते हैं a बाई p की पावर 0, क्योंकि a बाई b की पावर 0 इज 1। सो बेस सेम है, पावर को हमने इक्वल करना पड़ेगा, इज 0। सो इससे n की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये आंसर होगा, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन 28 में दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, मीन्स a प्लस b, यानी अगर हम लेट नंबर्स आर a एंड b, सो a प्लस b सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, इक्वेशन 1, a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स, अभी पूरा नहीं हुआ, ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन अगर a एंड b है, सो इट विल बी अंडर रूट ab, सो a प्लस b विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट ab, सो दिस विल बी इक्वेशन 1। नाउ सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, so now we have to prove number are in the ratio means a by b is equal to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2, ये हमने प्रूव करना है, सो a प्लस बी इजकल टू 6 अंडर रूट ए बी। तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम a प्लस बी को 2 अंडर रूट ए बी से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 6 अंडर रूट ए बी बाई 2 अंडर रूट ए बी। तो हम इसको कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1। अब दिस इज 3/1, क्योंकि ये हमने लिया हुआ है, क्योंकि वी नो दैट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, देखिएगा क्यों हमने ये लिया हुआ है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ जाता है। अगर यहाँ पर हम प्लस या माइनस करें, देखिएगा तो ये आ जाता है अंडर रूट ए का स्क्वायर इज ए प्लस दूसरे का बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर इज बी, और ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी, यानी अगर प्लस है तो प्लस साइन आएगा, माइनस है तो माइनस साइन आएगा, यानी माइनस है तो यहाँ प्लस आना ही आना है। तो इसको हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई तब करेंगे यहाँ पर हम इस न्यूमरेटर में, इस फॉर्मेट में, न्यूमरेटर में यानी अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर आए और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर आए। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाइंग componendo and dividendo, we get, so ये अप्लाई कर देते हैं। componendo dividendo क्या है? if a by b is equal to c by d, then we can say a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, ये होता है CND रूल। So a plus b plus 2 under root ab upon a plus b minus 2 under root ab, it will be 3 plus 1 upon 3 minus 1. So इसको हम कह सकते हैं it is under root a plus under root b का होल स्क्वायर, और नीचे under root a
minus under root b का whole square. So it is 3 plus 1 is 4 and it is 2. 2 का whole square upon 3 minus 1 is 2. It is root 2 का whole square. So we can say complete square कर देते हैं इसको, under root a plus under root b upon under root a minus under root b का whole square is equal to 2y root 2 का whole square. So finally taking under root to both side we can say, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, देखिएगा. सो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हम कह सकते हैं इट इज 2y रूट 2. तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. अब इसमें दोबारा से हम अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो अगेन अप्लाइंग, इसको मैं स्टार लगा देता हूं. अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन इक्वेशन 3. सो वी गेट, तो इसमें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको प्लस करेंगे देखिएगा, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. नीचे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2. देखिएगा 2 प्लस रूट 2 अपॉन, अब यहां पर 2 माइनस रूट 2 लिख लेते हैं, 2 माइनस रूट 2. या देखिएगा इसको इक्वेशन 3 को हम कह सकते हैं अगर रूट 2 से डिवाइड करें. देखिएगा इसको यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी रूट 2 बाई 1, इसको हम कह सकते हैं. देखिएगा 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. सो ये रूट 2 बाई 1 आता है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1. तो इसको रूट 2 प्लस 1 लिख लेते हैं एंड नीचे रूट 2 माइनस 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये आ जाता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट, ये माइनस है यहाँ पर, बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और माइनस अंडर रूट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है अंडर रूट बी. दिस इज अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1. अब यहाँ b से b कैंसिल, नीचे a से a कैंसिल, और ये आ जाता है 2 अंडर रूट a अपॉन 2 अंडर रूट b इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं. देखिएगा इसको हम रूट 2 प्लस 1 रेशनलाइज, चलिए रेशनलाइज नहीं करते, एक्चुअली यहाँ अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, it will give us under root a by under root b का whole square. It will be under root 2 plus 1 upon under root 2 minus 1 का whole square. So ये आ जाता है a by b. It is equal to a square is root 2 square is 2 plus 1 square is 1 plus 2ab is 2 into 1 is root 2. So नीचे का स्क्वायर करेंगे 2 plus 1 minus 2 root 2 आएगा. So it is equal to 2 plus 1 is 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. तो यही हमने प्रूव करना था कि a by b is equal to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. Hence proved. 29th क्वेश्चन में दिया हुआ है if a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus under root a plus g, a minus g. So let numbers are a and b, let a be the two numbers. So as a is given, a is the am, so we can say a is equal to a plus b by 2. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और g is the gm of these two number, so we can say g is equal to under root ab.
इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम देखिएगा इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 स्क्वायर करेंगे। सो इससे हमें ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मिलेगा। सो इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ जाता है ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4 माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर इज ए बी। 4 एलसीएम ले लेते हैं। सो इट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और ये आ जाता है 4ab। सो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 4। और इसको हम लिख सकते हैं 2ab से 2ab कैंसिल होगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 4। अब इस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का देखिएगा ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 4 इज 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे यानी हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अंडर रूट लेंगे तो बचेगा ए माइनस बी बाई 2। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब हम इक्वेशन देखिएगा 3 को और 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 और 3 को हम दोबारा से लिखते हैं। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं कि ये प्लस बी बाई 2 क्या है, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं इसको। और इक्वेशन 3 को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो ऐड करेंगे तो हमें ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 मिलेगा एंड ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू देखिएगा ये आ जाता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 ए होता है, एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ए इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ गया। अब हमने इक्वेशन ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज 5। सो इक्वेशन 4 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी दोबारा से लिखेंगे इसको ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज ए एंड ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इक्वेशन 4 5 को हमने दोबारा लिखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होगा पहले तो अब ये a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। सो b बाई 2 प्लस b बाई 2 बचेगा b। सो b इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो देखिएगा a को अगर हम देखें a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और b हमने सॉल्व किया है b इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि देन a प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, a सेम है तो हम कह सकते हैं कि a प्लस माइनस अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये क्या ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर a माइनस जी a प्लस जी। तो हम कह सकते हैं कि देन a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी आर द नंबर्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर रेशियो हम 2 लेंगे, ये जीपी बनेगी। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट यानी फर्स्ट टर्म इज ए इज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट
in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, end of fourth hour and end of nth hour. अगर इसको हम देखें कि it will be GP, so at present कितना है, let at present is A, or at the end of first hour it will be AR, then AR square, then AR3 and so on. So देखिएगा, this is present value, and this will be at the end of first hour. This will be at the end of second hour. This will be at the end of third hour. तो हमने क्या निकालना देखिएगा, इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे, यानी वी हैव टू फाइंड आउट bacteria present at the end of second hour. So it will be at the present of second hour, it is AR square. Similarly, bacteria present at the end of fourth hour, it will be AR to the power 4 and so on. At the end of, so bacteria present at the end of nth hour, it will be AR to the power n. Now देखिए A की वैल्यू क्या है, इस 30, शुरू में 30 प्रेजेंट है और डबल हो जाते हैं एवरी आवर, सो R is 2, so AR square at the end of second hour, so A की वैल्यू इज 30, R की वैल्यू 2, 30 into 2 का स्क्वायर, और ये आ जाता है 30 into 4, it is 120. At the end of 4 hour, यानी 30 into R 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 is 16, 16 into 30 is 480. इसी तरह से AR to the power n at the end of n hour, so it is 30 R to the power n. So ये आंसर होगा. Now question 31 कहता है what will be rupees 500 amount to be in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest at the rate of 10% compounded annually. So R is given 10%. Now rupees 500 amount is deposited. So amount deposited in the bank is equal to rupees 500. 500 deposit किया. Now at the end of first year, this amount becomes 500 और ये 10% का रेट है, so it will be at the end of first year the amount will be 500 plus 500 का 10%, यानी 500 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा 500 का 10%, so it will be 500 कॉमन 1 plus 10 by 100. तो इसको हम लिख सकते हैं this is equal to 10 से ये 0 कट जाएगा and it will be 11 by 10. So this is 500 और ये जो आएगा वो 1.1 आएगा, 1.1. So at the end of first year, so इसको हम लिख सकते हैं 1.1 की पावर 1. So similarly at the end of second year, this will be equal to, यानी ये जो अमाउंट है 500, ओके 1.1, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 1 plus 10 by 100. सो इन्हें फाइनली आ जाता है 500 1.1 की पावर 2. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट एट द एंड अमाउंट, या हम कह सकते हैं अमाउंट at the end of first year, या amount at the end of second year and amount at the end of 10th year.
10th here. So it will be equal to 500 1.1 की पावर 10. So ये आंसर होगा. अब क्वेश्चन 32 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है if am and gm of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. So देखिएगा इक्वेशन के रूट्स हम अल्फा बीटा मानते हैं. सो am अल्फा बीटा का am क्या होगा? am of alpha and beta are the roots of quadratic equation. So am दिया हुआ है, am is 8. So am of alpha beta, it will be alpha plus beta by 2. So it is given 8. So we can say alpha plus beta is equal to 16. इसको इक्वेशन 1 की फॉर्म मान लेते हैं. और दिया हुआ है gm of alpha and beta. So gm दिया हुआ 5. That means gm जो होता है that is under root alpha beta. So under root alpha beta is given 5. Squaring both side, it will give us alpha beta will be equal to 25. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2. We know that equation means quadratic equation whose roots are alpha and beta. So that quadratic equation is x square minus sum of roots means alpha plus beta into x plus product of roots alpha beta is equal to 0. So x square minus ये 16 आ जाएगा इक्वेशन 1 से, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से 25 है. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. ये आंसर होगा. थैंक यू. कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम. इफ यू फील इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.